So this is Dr. BKM. This is from Dr. BKM Institute, Dr. Bhupesh once again. And today we're going to discuss about this writing, which is again the same thing. Writing में सबसे पहले ये ढूंढना होता है हम लेटर किसको लिख रहे हैं. So हम लेटर किसको लिख रहे हैं. मिस यू आर ट्रांसफरिंग मिस सुजैन सुंडरन. ये तो हमारा पेशेंट हो गया जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू बेनबरी जनरल रिहेबिलिटेशन सेंटर. ओके. राइट अ डिस्चार्ज समरी टू कंपनी द पेशेंट. सो पेशेंट का नाम तो दिया ही नहीं है. So basically, you are transferring this patient to Bunbury General Rehabilitation Center. So यहाँ पे पहली बार हुआ है that we हमें पता ही नहीं लगा हम लेटर किसको भेज रहे हैं. So no director, no designation. So only thing that says is General Rehabilitation Center वालों को लेटर लिख रहे हैं. So that's fine. And discharge plan क्या कहता है? As हमने visit letter में किया था that today's visit always tell us the purpose. When visits letter is not there, there is a discharge letter. And in the discharge letter cases, discharge plan is the purpose of the letter. So this is the purpose of the letter, that patient is ready to be discharged to rehabilitation center. So we need to find out why he is being transferred to rehabilitation center. वैसे भी patient अगर rehabilitation center में जा रहा है तो इसका मतलब वो किसी बड़े हॉस्पिटल में आया था और बहुत ही सीरियसली इल होगा. वो इलनेस कुछ भी हो सकती है. द इलनेस कैन बी फ्रैक्चर, इट कैन बी cardiac attack, it can be anything. When a patient is severely ill and his condition gets better, और उसकी condition जब better हो जाती है तो हम उसको rehabilitation center पे भेजते हैं. तो rehabilitation center क्या provide करता है? Rehabilitative services. यानी patient पहले से better हो जाता है लेकिन उसको completely better करने के लिए rehabilitation center में रखा जाता है. तो पहले से ही मैं अंदाजा लगा लेता हूँ आज का लेटर कुछ ऐसा होगा जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार होगा. सो आई मेक अ गेस वर्क even before attempting the exam that today's the patient would be very ill. In my hospital he would have become better, but there would be lot of rehabilitative services which will be required for his complete recovery. लेकिन उसको rehabilitative services चाहिए होंगी complete recovery के लिए. तो होता क्या है, मैं आपको अगर क्लियर करूँ इस आइडिया को. सो सबसे पहले पेशेंट हॉस्पिटल में आता है जहाँ के हम नर्स होते हैं. हॉस्पिटल से बेटर होने के बाद दैट पेशेंट गेट्स डिस्चार्ज मोस्टली टू होम. लेकिन अगर वो पूरा ठीक नहीं होता तो ही गोज टू रिहैबिलिटेशन सेंटर. तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज के बाद और केयर के बाद, रिहैबिलिटेटिव केयर के बाद द पेशेंट becomes the patient kind of attains complete recovery. फिर वो अपने घर जाता है. So rehabilitation center is between hospital and home. So that is how it goes. If I use the right marking scheme, so it should be something hospital to rehabilitative center, rehabilitative center to home. So this is a kind of a mid place where patient attains his complete recovery. So rehab today हमारा letter जो है इस rehabilitation center के लिए है. So she should represent to the clinic on first. So this is not important point. Contact Dr. Brown if fever. So हम rehabilitation center वालों को कह रहे हैं कि contact Dr. Brown signs of infection or this. तो ये लेटर ज्यादा अच्छा नहीं है, वैसे ठीक ठाक लेटर है. Patient transferred to SIU, fever subsided. So that is why I am saying पेशेंट को ट्रांसफर कर दिया गया है SICU में और फीवर सबसाइड हो गया है. तो दैट मीन्स कंडीशन बेटर हो गया है. सो जो मेरा कंसेप्ट है कि वो इस वार्ड से दूसरे वाले वार्ड में आ गया है जहाँ पे फीवर सबसाइड हो गया है, इसलिए उसको नॉर्मल रूम में ट्रांसफर कर दिया गया है. तो पेशेंट हैज बीन ट्रांसफर टू नॉर्मल रूम. यहाँ पे फ्रॉम आना चाहिए था मेरे ख्याल से, फ्रॉम SIC. सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे दी है पोस्ट ऑपरेशन के डे के बाद. अब देखते हैं हम पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है. पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है? सुजैन सुंडरेन है. शी इज बोर्न इन 90. और अगर आज की डेट दे रखी है, आज की डेट है 18th 5 का मतलब ये 15 ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि 90 + 10 इज इक्वल टू 2005 का मतलब टोटल 15 साल की लड़की है. ओनली चाइल्ड, पेरेंट आर स्टिल मैरिड, लिविंग टुगेदर. पेशेंट जो है वो 10th ग्रेड की स्टूडेंट है. तो ये तो हमें पता लग गया. तो इस केस में हमें फर्स्ट नेम यूज करना है क्योंकि ये 18 ईयर से कम है. तो फर्स्ट नेम का मतलब हमें लिखना है मिस सुजैन. तो फर्स्ट नेम ये आएगा. 15 साल की लड़की है. पेशेंट डिड नॉट रिप्रेजेंट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट अंटिल 13. तो पहली बार 13 तारीख को एडमिट हुई थी, 13 को. एट विच टाइम शी डिस्प्लेस. एट विच की जगह मैंने आपको कल भी सिखाया था, सबसे बेस्ट होता है एट दैट टाइम. सबसे बेस्ट एट दैट टाइम. तो उस टाइम पर जब वो एडमिट हुई थी, यानी कि अगर आज 18th है डिस्चार्ज डेट, तो यानी कि 5 दिन पहले 18 - 13 इज इक्वल टू 5. 5 डेज पहले, 5 डेज अगो she was admitted and displayed signs of peritonitis and septic shock with a fever of 39 degree. तो पेशेंट ने को क्या किया?
रप्चर्ड अपेंडिक्स था और पेरिटोनाइटिस था, अपेंडिक्स वगैरह रप्चर हो गया था, ये मेन प्रॉब्लम हुई थी। और पेशेंट रिसीव एडिनोडेक्टोमी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेशेंट टेक्स मेडिकेशन फॉर एडीएचडी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिनाइज ईटीएच अब्यूज, डिनाइज सेक्सुअल एक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। सो पेशेंट क्या था, पेशेंट वाज ऑन अ क्लास ट्रिप टू पर्थ फ्रॉम हर स्कूल इन बैनबरी, सो शी वेंट ऑन अ क्लास ट्रिप व्हेन शी डेवलप्ड पेरीएम्बलाइकल पेन, तो वहां पे उसका पेन शुरू हुआ क्लास ट्रिप पे। एंड एनोरेक्सिया बिगिनिंग ऑन 10th, तभी उसने कहा 10th को पहली बार पेन हुआ, लेकिन पेशेंट हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 13 तक नहीं आई, यानी 3 दिन उसने वेट किया। तो कहानी ऐसी बन रही है कि जब उसको पेन हुआ 10th को, तो लेकिन 10th को वो एडमिट नहीं हुई, वो 3 दिन के बाद यानी कि 13th को आके एडमिट हुई और 5 दिन हमारे पास रही है। और 5 दिन में जो उसकी मेन प्रॉब्लम समझ आई है वो पेरिटोनाइटिस एंड सेप्टिक शॉक वाज द मेन प्रॉब्लम। So periumbilical pain, the pain then migrated to right lower quadrant with the maximum over the McBurney's point. So ये उसकी मेन प्रॉब्लम थी। लैब की इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ल्यूकोसाइटोसिस है, यानी कुछ इन्फेक्शन है। HB ये सब जो भी आपका मन करे लिख देना, लेकिन ल्यूकोसाइटोसिस से ये पता लगता है पेशेंट को इन्फेक्शन थी, तभी तो पता लगा है, तभी तो ये डायग्नोसिस हुई है पेरिटोनाइटिस की। और पेशेंट वाज इमीडिएटली गिवन एम्पिसिलिन, क्योंकि अब इन्फेक्शन थी तो ल्यूकोसाइटोसिस के लिए, तो मतलब ल्यूकोसाइटोसिस से इन्फेक्शन का पता लगा तो एम्पिसिलिन तो गई। तो ऐसी जगह पे जब आप लिखोगे ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन लैब इन्वेस्टिगेशन शोड ल्यूकोसाइटोसिस विद लेफ्ट डेविएशन, सो आप इस बात को लिखो, सो द पेशेंट वाज इमीडिएटली गिवन। तो ये कनेक्टर लगाना बहुत जरूरी होता है। सो द पेशेंट वाज इमीडिएटली गिवन, मतलब कहने का मतलब है लैब इन्वेस्टिगेशन ने ये शो किया, इस कारण से हमने इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स हो दी। सो द पेशेंट वाज गिवन एंटीबायोटिक्स इमीडिएटली। गिवन की जगह आप ऐसे भी कर सकते हो, वाज पुट ऑन एंटीबायोटिक्स, ऐसा अच्छा वर्ड भी यूज कर सकते हो। वैज पुट ऑन एंटीबायोटिक, नहीं तो ऐसे कह सकते हो एंटीबायोटिक्स वर कमेंस्ड इमीडिएटली, आप कुछ भी लिख सकते हो। पेशेंट वाज गिवन पेशेंट वाज पुट ऑन एंटीबायोटिक्स, या लिख सकते हो सो एंटीबायोटिक्स वर कमेंस्ड इमीडिएटली, एंटीबायोटिक्स वर कमेंस्ड इमीडिएटली। सो आपके इस सो लगाने से आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। बाय यूजिंग दिस सो अ स्मॉल कनेक्टर राइटिंग बिकम्स वेरी नाइस। फिर आप उसके बाद कनेक्टर बिठाते हो, तो ये वाली बात होगी। तो उसके बाद कहते हो अल्ट्रासाउंड, सो बिल्कुल उसके बाद, बिल्कुल आप कहते हो ना उसके बाद, तो यही लिखो इंग्लिश में भी, व्हेन यू आर राइटिंग ओईटी लेटर मेक अ स्टोरी, आफ्टर दैट an ultrasound was conducted, was carried out which displayed, बाकी line same, an ultrasound was carried out which displayed free fluid in the intra-abdominal space. Along with that, a standing AXR was also performed which showed free air in the hepatochronic axis. An emergency laparotomy was also performed in which, यहाँ पे बस छोटा सा कनेक्टर लगाना होता है, जिदे विच मतलब जिसमें, in which. So an emergency laparotomy was performed, कॉमा इन विच। ये कनेक्टर्स आपको सही लगाने होते हैं, सो यू हैव टू यूज द राइट कनेक्टर्स। द बेटर यू यूज द कनेक्टर्स द बेटर इट बिकम्स। एन इमरजेंसी लेप्रोटमी वाज परफॉर्म्ड इन विच अ परफोरेशन ऑफ द severely informed appendix was observed, हमारे द्वारा पाई गई, तो पैसिव वॉइस बस एक was लगाना है इसके बीच में, बाकी लाइन सेम, was observed along with this formation. So इस करके जब ये पाया गया, सो appendectomy was performed and abscess was drained, तो छोटा सा कनेक्टर फिर दोबारा, तो सो की जगह आप कभी कभी हैंस लगा सकते हो। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू से। और यहाँ पे पैसिव वॉइस एपेंडेक्टमी वाज परफॉर्म, छोटे छोटे जो ऐड करने हैं आपको पैसिव वॉइस यहाँ पे वाज, और ऐसे ही सो एपेंडेक्टमी वाज परफॉर्म्ड एंड एब्सेस वाज ड्रेन्ड। दैट्स इट, बस दैट इज हाउ सिंपल हो इट इज। अब मैं आपको दोबारा से एक बार ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन की फॉर्मेशन बताता हूँ। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन लैब इन्वेस्टिगेशन शोड ल्यूकोसाइटोसिस विद लेफ्ट डेविएशन, सो पेशेंट वाज इमीडिएटली गिवन एम्पिसिलिन अलोंग विद जेंटामाइसिन इंट्रावीनसली, या इन दोनों में से एक लिख दो। Ampicillin was given also, and ultrasound was carried out which displayed this, and a standing X-ray was also performed which showed this thing. Along with that, an emergent laparotomy was performed in which a perforation of severely inflamed appendix was observed along with intraperitoneal abscess formation. Therefore, या फिर इसका कनेक्टर ये भी लगाते हो जिसके लिए, for which मतलब जिसके लिए, यानी जिदे लिए, यानी उसको जो था
she was having this abscess formation for which appendectomy was performed and abscess was drained, so that you can use another connector. Please listen to the recording 3 times, then you understand the connectors. Then you do not put this line. Then fever got subsided. After that fever got subsided. तो जैसे पहले आप after that लगा चुके हो, तो उसको इसको लगा सकते हो then का मतलब भी यही होता है उसके बाद, after that. So then fever got subsided, again connector, then fever got subsided, so the patient was transferred to, ये छोटे छोटे connector, these small connectors are very important. So the patient was transferred to, बिल्कुल आराम से, so the patient was transferred to a normal room and ciprofloxacin was commenced post operatively for 3 days. ठीक है, 3 दिनों के लिए शुरू कर दिए. Now the patient is ready to be discharged to rehabilitation center. वैसे तो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी पहले ही शुरू कर दिया, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है. ये या तो पहले लिखना चाहिए था, अब यहाँ पे लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये कह रहा है ऑपरेशन के बाद. अगर पेशेंट हमारे पास, इफ पेशेंट वाज एडमिटेड ऑन 13th, अगर 13 को एडमिट हुआ था, तो ऑपरेशन तो हमने साथ ही कर दिया होगा मेरे ख्याल से. ऑपरेशन तो आते ही कर दिया होगा. सो इस पॉइंट को बाद में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूज कर रहे हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसको रहने दो, इस पॉइंट को लास्ट में लिख देंगे. सो नाउ it would be greatly appreciated. Now it would be if you take the patient in your rehabilitation center and can provide him the rehabilitative services. Also, she should represent to our clinic for general assessment. वैसे तो यहाँ पे hospital होना चाहिए था. Contact Dr. Brown if there is any fever or sign of infection, or if the systolic blood pressure is less than 100 or more than 160 mmHg. तो इन केसेस में कॉन्टैक्ट करना है डॉक्टर ब्राउन को. वैसे अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो इतनी सिंपल लाइन है, काइंडली कॉन्टैक्ट डॉक्टर ब्राउन इफ, सेम लाइन, फीवर इज मोर देन, इफ फीवर इज मोर देन, या फीवर हो जाए, तो मैंने आपको वर्ड बताया था होने की इंग्लिश हमेशा गेट. इफ फीवर गेट्स मोर देन 38 डिग्री Celsius, और in case blood systolic blood pressure goes, जाता है तो goes below 100 और above 160 mmHg. so ऐसे आप लिखते हो, जैसा पंजाबी में बोलते हो वैसा ही लिखते हो. अगर इतना हो जाता है तो ठीक है, गेट्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, इफ द इन केस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर गेट्स बिलो, गेट्स वर्ड इज इजी, अगर हो जाता है तो. ऑल्सो काइंडली कॉन्टेक्ट डॉक्टर ब्राउन, तो लाइन ये चल रही है. ठीक है, सिंपल, अगेन बिल्कुल सिंपल. उसके बाद अगर आपको इससे ज्यादा लिखना है कि इन केस ऑफ इन्फेक्शन, ऑल्सो इन केस ऑफ इन्फेक्शन, तो ये छोटा सा टू लगाना. टू मतलब इन्फेक्शन के केस में भी, ऑल्सो इन केस, also in case of infection too, sorry for the spelling mistakes, also in the case of infection too डॉक्टर ब्राउन शुड बी कॉन्टेक्टेड. तो हमने उसको दोबारा लिख दिया. अगर मैं इसको हिंदी या पंजाबी में बोलूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि काइंडली कॉन्टेक्ट डॉक्टर ब्राउन इफ द फीवर गेट्स मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस, और इन केस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर गेट्स बिलो 100 और अबव 160 mg. ऑल्सो इन केस ऑफ इन्फेक्शन टू डॉक्टर ब्राउन शुड बी कॉन्टेक्टेड. तो डॉक्टर ब्राउन उस केस में भी कॉन्टेक्ट करने चाहिए, उस केस में भी, यानी इन दैट केस ऑल्सो. तो ये टू वर्ड यही बताता है, इस केस में भी, टू का मतलब भी. सो दैट इज हाउ यू विल राइट. अगर मुझे अब इसका फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, जस्ट टू शो यू, अगर मुझे इस लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है तो मुझे समझ आई गया है. सो आई एम राइटिंग, फर्स्ट पैराग्राफ पर्पस के लिए होता है, तो पर्पस आई एम राइटिंग दिस लेटर. ज्यादा अगेन डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, आप ज्यादा लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. रिगार्डिंग मिस सुजैन who was admitted due to severe pain, सिंपल सीवियर पेन इन हर एब्डोमन, अपने एब्डोमन में उसके सीवियर पेन इन हर एब्डोमन, मेक इट सिंपल. एंड शी वाज फाउंड विद
क्या कौन सी थी, पेरिटोनाइटिस या डायग्नोज विद? सिंपल, डायग्नोज विद पेरिटोनाइटिस एंड सेप्टिक शॉक. Now I have covered all the primary aspects कि वो क्यों आई थी. I am writing this letter regarding Miss Suzanne, who was admitted due to severe pain in her abdomen, and she was diagnosed with peritonitis and septic shock. After treatment, again very simple. After treatment, her condition is better, but is better इस करके, so she is being discharged from our emergency department या from our hospital, but she requires rehabilitative services या rehabilitative care, ज़्यादा अच्छा वर्ड है, care for complete recovery. अपनी complete recovery के लिए उसको rehabilitative care चाहिए, so she is being transferred. तो इसको यहाँ पे फुल स्टॉप लिखा देते हैं, ये लाइन बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी लाइन नहीं बनानी चाहिए, तो बट की जगह बेटर, सुंदर कनेक्टर हाउएवर लगता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है. However, she requires rehabilitative care for complete, so she is being rehabilitation center. So now this is my first paragraph, which is complete and it is easy to read for the examiner. So I'm writing this letter regarding Miss Suzanne, who was admitted. Admitted ke spelling. So always check your spelling when you write. Admitted to our hospital due to severe pain in her abdomen, and she was diagnosed with peritonitis and septic shock. After treatment, her condition is better, so she is being discharged from our hospital. However, she requires rehabilitative care for complete recovery. लेकिन उसको अब ये चाहिए, यहाँ पे एक छोटा सा नाउ लगाने से ना ये और भी अच्छा हो जाएगा. However, now she requires rehabilitative care for the, so she is being referred to your rehabilitation center. So that is how you write the complete paragraph. Please listen to recording 2-3 times because once reading for once is not fine. आपको एक बारी में सब कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जब आप उसको 2-3 बार समझोगे तो आपको पूरा लेटर समझ आएगा. तो फर्स्ट इज पर्पस, सेकंड में आप नॉर्मल चीजें लिखोगे, दैट ड्यूरिंग हर स्कूल शी गॉट अफेक्टेड इन द नेट, whatever the things were. Then you will say after 3 days she came to our emergency department and at that time she was having, जो भी मैंने आपको during hospitalization का पैराग्राफ बनाया था. फिर नाउ आफ्टर ट्रांसफरिंग टू नॉर्मल रूम, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड अगर आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सको, रिहेबिलिटेटिव केयर, और डॉक्टर ब्राउन को कॉन्टैक्ट कर लेना अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो. सो दैट इज व्हाट दिस होल लेटर इज ऑल अबाउट. I hope everybody has understand. So after I'm switching off the recording, this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes once again. Our contact number is +91 7696734 256. And now I will take your questions and will unmute you. So मैं आपके questions ले लेता हूँ सबके. Thank you.